Bismillahirrahmanirrahim. I'm Aziza Manir, and today we'll be talking about random variables, which is a continued lecture from the previous one. In the last lecture, we have discussed that what actually random variables are. In continuation with the discrete and continuous random variables, we have discussed discrete and continuous probability distribution as well, and we have discussed the mean and variance of random variables. Today, what we are discovering is something which is very interesting and something which is really applicable in business environment. Yesterday we were talking about some definitions and some introductory part of random variables. Today we will be more applicative, and today we will be more towards multiple examples solving and towards multiple real situations handling, that how we can actually encounter the problems and what are the probable solutions for that in the application of random variables. So today we'll be talking about calculation of variance in frequency distribution. In the last lecture we have discussed variance, but not with the frequency distribution. We have taken a random data which is discrete, which was not distributed in frequency. Although we have calculated mean for that, but variance for frequency distribution was not considered in the previous lecture. Secondly, we will be analyzing the properties of mean and variance, which were related to the random variables. And we will be talking about discrete uniform distribution, a step higher to random variables, and then binomial and multinomial distributions. Now, binomial and multinomial distributions is an extension of similar random variables, but their application is comparatively more vast. So what are they? We are about to discover. First of all, variance for the frequency distribution. Just to connect that what actually variance is, from the previous lecture we just give a small description of variance. That variance is basically describes the dispersion of data, that how widely or how shortly the data is dispersed. As it is stated that the expected value gives us an idea of average or central value for the random variables, but we often want to measure dispersion or variability of change from quite large to quite small values. Now consider an example, that if we are having a data which is very strongly dispersed, meaning a data consists of values like 0, 1, 100, 120, 1000 kind of data, definitely mean can be calculated for that. Definitely the expected value or the central tendency must be lying in that data as well. But the mean of this particular data, which is too much variate between, is not describing the right picture, that where actually the central tendency is lying, and is the central tendency equally dividing the data amongst two equal parts or not. Or yes, if mean is dividing the data into two equal parts, then we should be interested that what is the variability lying, or what is the variation lying between two values. 0 to 1, very small variation, but 1 to 100, vast variation. 1 to 120, not that varying difference, but 120 to 180 is a big difference. So when you are calculating variance, you are more focusing towards the dispersion of data, that how widely or how in a shrinked way the data is being dispersed. In order to calculate variance for frequency distribution, our formula is, the variance of x describes summation x minus mu whole square into f of x, where f of x describes the frequency. How? We will be discussing it through an example, which is equals to sigma square or sigma delta square. This is equals to square.
When we are talking about the standard deviation, standard deviation is the under root of variance, or you can say it is denoted by sigma, where this 2 can be cancelled with this radical sign, as the radical sign is equals to half. So variance of a frequency distribution of a discrete data is calculated by subtracting the average or subtracting the mean from the data individually and multiplying the square of these deviations from its frequency. We will be noticing it, we will be analyzing it in an example. Now consider this as an example, that we have a data of data set from 0, 1, 2, 3, 4 and 5 numbers with their relative frequencies at 0.1, 0.39, 0.24, 0.14, 0.04 and 0.01. From the data, we have calculated mean for these values by multiplying x values with their frequencies and dividing it with sum of frequencies. For that, we have taken mu, which is equals to 1.50. I'm not going into the details of calculating mean because we have already calculated this in last lecture. So if we have received mean, that is 1.50, then on the basis of this data, on the basis of this mean, we are in a position to now consider the deviation. Now deviation is what? Deviation is the difference between each value of the data with its mean. That how this particular value of the data is deviated from mean. Now there exist multiple smaller and larger values in the data which describes, because mean describes the central tendency. Half of the values lies on the left and half of the values lies on the right side of the data. If 1.50 is the mean, then definitely there will be few values which are lying less than 1.5 number, and there will be few values which are lying on the greater side of 1.50 or which are greater than 1.50. In this case, when we have calculated the deviation, we have subtracted the very first value of x, 0, from its mean, that is 1.50, and we have received 1.50. Then we have taken the second value of the data, which is x, and took the deviation from it from 1.50, which is 0.50. The third value in the data, 2, minus its mean, which is 1.50, 0.50, and so on and so forth till 3.50. Now we are taking the very first value of the data, which is x. Now x minus 1.50, which is x minus its mean, is minus 1.50. When you consider minus 1.50, this is the deviation. Our deviations might be either negative or positive. If the deviation is negative, then the sum of deviations will definitely be either negative or positive. But we are interested in knowing the square of deviations, and when we are considering the square of deviations, then we will not be having any negative sign with that. So the square of deviations will negate the concept of negative sign. So in this example, we have taken that we have analyzed that 0 and 1 are two values which are providing us data which is less than its mean. Definitely it will be providing us the deviation which is negative in sign.
and rest of the 4 values will be positive. But when we take the square of these deviations, that is the square, when we take the square of these deviations and take and analyze them, we see that all the signs becomes positive. We have taken the deviation which is x minus mu, and then the square of the deviations which is x minus mu whole square, which is stated in this column. For getting variance, we need sum of squared deviations multiplied by the frequencies of the given set of data. So we have in column 4, we have received all the frequencies which are all the deviations which are square, and the product of these square deviations with its frequency. So 2.25 is the square deviation, and 0.18 is the frequency of appearing this number in this given set of data. Provides us with the figure of 0.4050. By taking the summation of all these square deviations and the product of square deviations with that of their frequencies, when we take the sum of it, we get sigma square. Now sigma square describes the variance, which is 1.250, sum of square deviations multiplied with their relative frequencies. Now we will be analyzing the properties of mean and variance, which are that now the property of mean and variance of a random variable describes that if there exist multiple coefficients and a constant, then what happens with the mean and variance of random variables. So here we have taken A and B are constants. Then mu of A of x plus B is described as the expected value of A of x plus B. Now that is the property कि जब भी हम पॉपुलेशन मीन को डिस्कस करेंगे किसी कांस्टेंट के साथ, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो उसका जो मीन है वो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू और उस कांस्टेंट का सम टोटल होगा. Now how we will be analyzing it through an example or through its proof as well. Now remember that this proof is actually taken in consideration with the discrete perspective. ये discrete के केस में हमने proof consider किया है, लेकिन ये equally applicable है continuous के केस में भी. Discrete और continuous दोनों के केस के अंदर ये वाला प्रूफ जो है वो कंसिडर हो सकता है. Now here we have analyzed that mu of A of x plus B is equals to expected value of A of x plus B, which is equals to summation A of x plus B into their relative frequencies, where x might have multiple values. X might be having multiple values from 0, 1, 2 up till n. Right? Now let us consider it that we have taken as an as summation sign here. So there must be number of values appearing in the data set, and we have taken the sum total of all these values with the product of their relative frequencies, which is A of x1 plus b into frequency of x1 plus A of x2 plus b
into frequency of x2 plus so on up till a of xn plus b into frequency of xn. Here I skip to write n. यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा ऑब्जर्वेबल है, और उस केस में हमने एक चीज एनालाइज की है कि हर वैल्यू के अंदर हमारे पास ए भी अपीयर हो रहा है और बी भी अपीयर हो रहा है. अगर हम यहां से लेकर यहां तक एक वैल्यू कंसिडर करें, एक नंबर कंसिडर करें, तो हमारे पास हर वैल्यू के अंदर ए भी अपीयर हो रहा है और बी भी अपीयर हो रहा है, ए भी अपीयर हो रहा है और बी भी अपीयर हो रहा है. हम सारे के सारी इक्वेशन को इस तरह से डील करते हैं कि हम ए को इसमें से सेपरेट कर लेते हैं. ए तो कांस्टेंट है, हम ए को इसमें से सेपरेट कर लेते हैं. और हमने जब ए इसमें से सेपरेट किया है तो हमारे पास यहां पर हमने जब हम ए को सेपरेट एक्सट्रैक्ट कर लिया तो हमारे पास यहाँ पर x1 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ x1 प्लस x2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ x2 प्लस सो ऑन अब टिल xn और फ्रीक्वेंसी ऑफ xn हमारे पास रिजल्ट रह गया. इस पूरे लार्ज ब्रैकेट्स के बाद हमने जो सेकेंड साइड है डेटा की उसको टच किया है, विच इज द सेकेंड रिपीटेड कांस्टेंट विच इज b, और हमने b को मल्टीप्लाई किया है विद जस्ट फ्रीक्वेंसीज ऑफ मल्टीपल data numbers in the given set of data which are starting from x1 to xn. When we combine them in the form of a summation, तो b के साथ हम यहाँ पर mention कर लेंगे sum of all the frequencies, b multiply sum of all the frequencies, और बिल्कुल इसी तरह से x को मल्टीप्लाई x को सम टोटल ले लेंगे with reference to their frequencies, और a को उसमें से हम सेपरेट कर लेंगे. तो सिंपली हमने जो यहाँ पर काम किया है वो ये है कि जो भी हमारे पास दो कांस्टेंट्स अपीयर हो रहे हैं उन दोनों कांस्टेंट्स को हमने सेपरेट ब्रेसेस के अंदर प्लेस कर दिया है विद रेफरेंस टू देयर फ्रीक्वेंसीज. और वहां से हमने एनालाइज किया है कि जो पहला समेशन है कांस्टेंट का a इंटू समेशन x ऑफ f(x), ये डिस्क्राइब कर रहा है मीन विच इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, और जो दूसरा पोर्शन है वो डिस्क्राइब कर रहा है समेशन विच इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एक्चुअली, और हमने ये कंसिडर किया है इक्वल टू 1. यहां से अगर हमारे पास b इंटू समेशन f ऑफ x 1 की इक्वल आ जाता है तो हमारे पास पॉपुलेशन मीन विच इज a ऑफ x प्लस b गिव्स द रिजल्ट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a ऑफ x प्लस b, और अगर हम उसे पॉपुलेशन मीन में कंसिडर करें तो दिस इज a म्यू प्लस b. इसी अगर हम प्रॉपर्टी को एनालाइज करें तो हमारे पास यहाँ पर दो कांस्टेंट्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हमने डिस्कशन की है. इन दोनों कांस्टेंट्स में से अगर एक कांस्टेंट को हम जीरो कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ a बिकम्स जीरो, तो उस केस में जो म्यू ऑफ b है a तो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास ये यहां पर से गायब हो जाएगा. तो व्हाट इज लेफ्ट विद अस विल बी म्यू b. यहां पर हम बात करें क्रॉलरी की एक्चुअली, और क्रॉलरी एक कंडीशन होती है. क्रॉलरी अगर हम मल्टीपल टाइम्स ट्रायल करके मल्टीपल टाइम्स उसको अप्लाई करें तो वो एक एक्सिम बन जाती है, और एक्सिम अगर हम मल्टीपल टाइम ट्राई करें और हमें सिमिलर रिजल्ट दे तो वो हमारे पास एक लॉ बन जाता है या थ्योरम बन जाता है. थ्योरम में भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और अगर वो लिमिटेशंस हम गायब कर दें तो फिर वो लॉ बन जाता है. तो क्रॉलरी देन एक्सिम then becomes a theorem and then it becomes law.
यहाँ पर हमने एक छोटी सी कंडीशन अप्लाई की है विच इज अ कंडीशन ऑफ क्रॉलरी, कि अगर हमारे पास इस गिवन इक्वेशन के अंदर a जो है वो 0 हो जाए तो उस केस में म्यू ऑफ b जो है वो b के इक्वल होगा, रेस्ट ऑफ द फिगर्स बिकम्स 0। सिमिलरली अगर हमारे पास b 0 हो जाए, जो सेकेंड क्रॉलरी है विच यू विल बी सीइंग इन अ कपल ऑफ मिनट्स, जब हमारे पास b 0 हो जाता है इस इक्वेशन के अंदर से, तो हमारे पास जो मीन है वो हो जाएगा म्यू ऑफ ax इज इक्वल्स टू a म्यू। तो ये एक छोटा सा इसके अंदर एडिशन है जो कि डिस्क्राइब होता है क्रॉलरी से, कि जब हमारे पास a 0 होता है तो हमारे पास जो मीन है वो एक कांस्टेंट नंबर शो कर रहा होता है, वही कांस्टेंट जो कि इनिशियली हमारे पास एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब हम b को 0 के इक्वल प्लेस करते हैं तो हमारे पास जो मीन है म्यू है a ऑफ x, वो कांस्टेंट ऑफ म्यू शो करता है। I hope कि random variables with reference to variance and means properties are clear. You will be further having multiple readings which I will be providing you shortly, and with these readings the concept will be more clear. Then we should plunge towards uniform distribution. That what actually uniform distribution is. Now, simplest of all discrete probability distributions is one in which the random variable assumes all its values with equal probabilities. Then the discrete uniform distribution is given by f of x with k as a parameter is equals to 1 over k for all values of x, which is x1, x2, x3 up till xk. थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की है वो ये है कि सिंपली एक रैंडम वेरिएबल्स, जिस तरह हमने कॉइन टॉसिंग के ऊपर भी बात की, हमने डाइस रोलिंग के ऊपर भी बात की, अगर हम फॉर एग्जांपल एक डाइस ही रोल कर रहे हैं तो हमारे पास हर नंबर अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी इज सिमिलर विच इज 1/6, राइट। अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है टू अपीयर हेड अपीयर होगा वो 1/2 है, और जो प्रोबेबिलिटी है कि टेल अपीयर होगी वो भी 1/2 है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी है हमारे आउटकम्स की। हमने डिस्कस किया था कि हर एक्सपेरिमेंट का एक आउटकम होता है। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने ये चीज अज्यूम की है कि वो तमाम एक्सपेरिमेंट्स जिनका आउटकम भी हमें पता है और उन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी भी हमें पता है कि वो यूनानिमस रहेगी, वो सिमिलर रहेगी, वो यूनिफॉर्म रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, तो उस केस में रैंडम वेरिएबल्स किस किस्म के रिजल्ट्स शो करते हैं। तो यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब किया है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज f of x with k is the uniform probability which is not changeable, provides us with the ratio of 1 over k, provides us with the similar probability that how much the number of times the data the outcome is providing us with the probability कि इस particular outcome की क्या probability है इस experiment पे। We have used the notion f of x k instead of f of x. इससे पहले हम जितनी भी examples हमने consider की है frequency distribution में, उसमें हमने सिर्फ f of x को कंसिडर किया, लेकिन यहाँ पर हम f of x विद पार्शियल नोशन ऑफ k भी यूज कर रहे हैं, जो कि डिस्क्राइब करता है कि ये जो फंक्शन लिखा गया है वो एक्चुअली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है और वो डिपेंड करता है एक पैरामीटर पे जो कि k है। Now for an example of uniform distribution, when a die is tossed, each element of the sample space, that is 1 to 6, occurs with probability 1/6. The similar example which I was talking about, कि अगर हमने एक डाइस जो है वो रोल की है तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 अपीयर होगा, 2 अपीयर होगा, 3, 4, 5 या 6 अपीयर होगा। This probability is equals to 1/6.
which remains uniform in the entire experiment. Similarly, जब हमने यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला को, तो f of x becomes f of x with notion of 6. ये आउटकम जी हमारे पास मैक्सिमम, ये सैंपल स्पेस हमारे पास मैक्सिमम 6 नंबर्स शो कर सकता है. 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. उन 6 पॉसिबल आउटकम्स की सिमिलर प्रोबेबिलिटी है, और वो क्या है? 1/6 है. जी बिल्कुल. अगर हम यहाँ पर कॉइन टॉसिंग ले लेते हैं, तो कॉइन एक हमने अगर कॉइन टॉस किया है तो पॉसिबल सैंपल स्पेस कितने होंगे? 2, 1 and 2, और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2. Similarly, take another example, that suppose an employee is selected at random from a staff of 10 people to supervise a certain project. Each employee has the same probability 1/10 of being selected. If you assume that the employees have been numbered in some way from 1 to 10, कि हमारे पास 10 लोग हैं, उसमें से एक सुपरवाइजर को चूज करना है हमने एक प्रोजेक्ट के लिए, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है कि कौन सा बंदा सिलेक्ट होगा इन 10 में से, तो वो हर बंदे के पास एक ही सिमिलर प्रॉपर्टी है, प्रोबेबिलिटी है, विच इज 1/10. अगर हम हर बंदे को एक नंबर असाइन कर देते हैं, हर एम्प्लॉय को एक नंबर असाइन कर देते हैं फ्रॉम 1 to 10, तो हमारे पास जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो डिस्क्राइब होगी f of x of 10 people के हमारे पास जो है वो पैरामीटर है जी. पैरामीटर डिस्क्राइब करता है कि मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 10. और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/10. तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ डेविएशंस बन गया है, एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ डेटा बन गया है कि अगर हमारे पास 10 एम्प्लॉय है, हमने हर एम्प्लॉय को 1 से लेकर 10 तक का एक नंबर असाइन कर दिया है, और वहां से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो सिमिलर आई है 1/10 फॉर टू सिलेक्ट 1 एम्प्लॉय फ्रॉम the group of 10 people. So in that case the probability of selecting 1 is 1/10. So in that case a uniform distribution will be applied. जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो हमारे पास एक डिस्क्रीट सा फिगर शो करता है. अच्छा, यहाँ पर हम एक और चीज भी बहुत इंटरेस्टिंगली नोट कर सकते हैं. यहाँ अगर हमने 1/6 वाली एग्जाम्पल को हम कंसिडर कर लें कि हमारे पास जो आउटकम है वो 1/6 आया है, प्रोबेबिलिटी जो है 1/6 है हर कॉइन को टॉस करने के रिजल्ट की, हर डाइस को रोल करने के रिजल्ट की. तो हमारे पास जो ग्राफ आता है डिस्क्रीट के केस में वो एक बार स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि यहाँ शो भी हुआ है, विच इज शोइंग इक्वल प्रोबेबिलिटीज. कंटिन्यूस के केस में हमारे पास क्योंकि टेबुलर वैल्यूज नहीं होती, रिमेंबर हमने बात की थी रेंज की, कि मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, या वेट्स की बात कर रहे हैं, या हाइट्स की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास कोई स्पेसिफिक टेबुलर वैल्यू तो नहीं आ रही, बल्कि रेंज ऑफ वैल्यूज आ रही हैं. तो जब हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज आएंगी तो वहां पर हमारे पास कर्व बनेगा, विच इज अ कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जब हम डिस्क्रीट डेटा की बात करते हैं तो हमारे पास वो फिगर्स आते हैं, वो टेबुलेशंस आती हैं, जो कि टेबुलेशंस तो मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सिमिलर है. जब प्रोबेबिलिटी सिमिलर है तो हम वाई एक्सिस के ऊपर एक ही वैल्यू अज्यूम करेंगे, विच इज हेयर मेंशन एज 1/6. तो उस केस में हमारे पास एक डिस्क्रीट सा डेटा पेयर होगा जिसमें हर वैल्यू हमें एक सिमिलर टेबुलेशन शो कर रही है, सिमिलर रिप्रेजेंटेशन शो कर रही है. अगर हम यही वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने डिफाइन किया था कि ये वाला स्ट्रक्चर अगर हम कंटिन्यूस के ऊपर अप्लाई करें तो वो हमारे पास एक रेंज ऑफ डेटा शो करेगा,
which is formulated in a bell-shaped curve of normal distribution. वो क्या होता है, उसकी क्या एप्लीकेशन होती है, वो हम कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. ओके, अब इससे पहले हमने ये डिस्कस किया कि एक एक्सपेरिमेंट की जो आउटकम्स हैं उनकी एक यूनिफॉर्म या उनकी एक सिमिलर प्रोबेबिलिटी अपीयर हो रही है. बाइनोमियल के केस में या मल्टीनोमियल के केस में हम ये डिस्कस करेंगे कि दो या दो से ज्यादा प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं. जब हम दो की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बाइनोमियल की. जब हम मल्टीनोमियल की बात करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट हो सकती हैं. इन बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस वी टॉक अबाउट that if a data provides us or if an experiment provides us more than one probability, then what happens? In binomial distribution, an experiment often consists of repeated trials, each with two possible outcomes, which may be labeled success or failure. This is true in flipping of a coin 5 times, where each trial may result in a head or a tail. कि अगर हम 5 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये है कि या हमारे पास हेड अपीयर होगा या हमारे पास टेल अपीयर होगी. लेकिन हम खुद से किसी भी एक आउटकम को सक्सेस और किसी भी एक आउटकम को फेलियर आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम किस आउटकम को या किस इवेंट को सक्सेस कंसिडर करते हैं और किसको फेलियर कंसिडर करते हैं. लेट अस अज्यूम कि जब भी हेड अपीयर होगा तो वो सक्सेस है, तो डेफिनेटली जो टेल है वो फेलियर होगा. लेकिन हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 ही है. टॉसिंग ऑफ कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 ही है. Now this is true in flipping of a coin 5 times, where each trial may result in a head or a tail. We may choose to define either outcomes of success, जो वही चीज जो मैंने आपको भी बताई है. It is also true if 5 cards are drawn in succession from an ordinary deck and each trial is labeled success or failure, depending on whether the card is red or black. If each card is replaced and deck is shuffled before next drawing, then both experiments described above have similar properties and show similar probabilities of 1/2 from each trial to trial. Experiments of this type are known as binomial experiments. एक चीज जिसमें यहाँ पर नोटेबल है वो ये है कि जब हमने एक डेक में से कार्ड्स निकाले हैं तो वो या तो ब्लैक होंगे या वो रेड होंगे. यहाँ पर भी हमारे पास जो आउटकम है वो 2 ही है. तो इसका मतलब है कि इस केस में भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है और कॉइन टॉसिंग में भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है. ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स, इसका मतलब है कि सिमिलर किस्म के रिजल्ट्स जनरेट कर रहे हैं, सिमिलर किस्म के जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं. लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस चीज को और एक्सटेंड करें और इसी एग्जाम्पल में, कार्ड्स ड्राइंग वाली एग्जाम्पल में, अगर हम सक्सेशन और फेलियर को थोड़ा सा नोटिस डाउन करें तो हमें ये पता लगता है कि अगर तो हमने डेक में से कार्ड निकाले वो या तो ब्लैक आया या रेड आया, 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई. लेकिन और हमने दोबारा कार्ड्स वापस रख दिए, फिर हमने दोबारा से शफल किया और कार्ड्स निकाले. लेकिन जब हमने कार्ड्स रिप्लेस नहीं किए और हमने पहला कार्ड निकाला तो पहला कार्ड तो निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी कि वो या तो रेड होगा या ब्लैक होगा. लेकिन जो दूसरा कार्ड है वो कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी फिर 1/2 नहीं होगी अगर हमने वो रिप्लेस नहीं किया तो. इसलिए क्योंकि अगर हमने रिप्लेस कर दिया है तो डेक में दोबारा वापस 52 कार्ड्स आ गए. एक डेक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं. अब अगर हमने एक रेड कार्ड ड्रॉ किया तो यहां तक तो प्रोबेबिलिटी 1/2 थी.
लेकिन ये कार्ड जो हमने ड्रॉ किया है इसको हमने अपने पास ही रख लिया, इसे हमने वापस डेक में नहीं डाला और कार्ड्स को हमने शफल किया। और दोबारा जब कार्ड्स निकालेंगे तो हमारे पास डेक में अब 51 कार्ड्स बच गए हैं, 52 नहीं है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी। अब जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 नहीं रहेगी, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो सम टोटल नंबर है कार्ड्स का वो चेंज हो गया। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी 25/51 हो जाएगी। कैसे? क्योंकि अब हमारे पास 25 कार्ड्स बचे हैं रेड, एक तो हमने विड्रॉ कर लिया और टोटल कार्ड्स हमारे पास जो बचे हैं वो 51 है, क्योंकि एक कार्ड ड्रॉ हो गया और वो रेड था। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो गई है। और जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है तो यहां पर हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते। लेट मी रिपीट वंस अगेन थ्रू अ सिंपल एग्जांपल, या हम इसी एग्जांपल को एक दफा दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमारे पास एक कार्ड्स का डेक था विच इज हैविंग 52 कार्ड्स, तो उसमें से 26 डेफिनेटली रेड होंगे और 26 डेफिनेटली ब्लैक होंगे। अब हमने ये assumption ली है कि जब हमने एक कार्ड ड्रॉ किया है तो उसको हमने वापस उसमें डाल देना है, लेकिन जब हम वो कार्ड उसमें दोबारा वापस नहीं डाल रहे तो इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है वो चेंज हो गए, वो कम हो गए। और अगर हम उसमें से एक कार्ड रेड निकाल चुके हैं तो इसका मतलब है कि रेड कार्ड्स का नंबर कम हुआ है और ब्लैक कार्ड्स का नंबर उतने का उतना ही है। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, वो 1/2 नहीं रहेगी। अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 25/51 हो जाएगी, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्ड्स है वो चेंज हो गए। जब हमारे पास इस किस्म का एक्सपेरिमेंट हो तो यहाँ पर हम बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट्स या बायनॉमियल फंक्शंस को या बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि हमारे पास सक्सेशन का और फेलियर का चांस चेंज हो चुका है। कॉइन टॉसिंग में सिमिलर रहेगा, इसलिए क्योंकि हेड्स और टेल्स के अंदर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकती, लेकिन कार्ड्स ड्राइंग के अंदर या बॉल्स को अगर हमने अर्न में से निकालना है विद और विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी चेंज हो सकती है। जब भी प्रोबेबिलिटी सक्सेस और फेलियर के अलावा चेंज होगी तब हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई नहीं करेंगे। Okay, now there exist few properties of binomial distribution which describes it more clearly. पहली प्रॉपर्टी है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो वंस ना हो, एक्सपेरिमेंट हैज टू बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल ट्रायल्स, वो एक से ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स पे कंडक्ट होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए। सेकेंड प्रोबेबिलिटी इज कि हमारा हर ट्रायल जो है वो एक आउटकम जरूर शो करेगा, हमारा हर एक्सपेरिमेंट एक आउटकम जरूर शो करेगा, वो या तो सक्सेस में होगा या फेलियर में होगा, राइट? ऐसा नहीं होगा कि किसी आउटकम का कोई रिजल्ट जो है वो सक्सेस और फेलियर के अलावा कुछ और थर्ड रिजल्ट भी आ रहा है, ड्रॉ भी हो रहा है, टाई भी हो रहा है, नहीं। जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है उसमें हमारे पास बस दो ही आउटकम्स होंगे, या तो वो सक्सेस होगा या वो फेलियर होगा, और एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम रिपीट होगा। तीसरी चीज ये कि जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो डिनोट होगी P से, और वो हर ट्रायल के अंदर और हर एक्सपेरिमेंट के अंदर सिमिलर P ही रहेगी, ठीक है? जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो P है और वो हर ट्रायल में सिमिलर रहेगी। कॉइन टॉसिंग में 1/2 रहेगी, रोलिंग ऑफ डाइस में 1/6 रहेगी, जो कि P से डिनोट होगी। द रिपीटेड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, हर ट्रायल जो है वो दूसरे ट्रायल्स पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ट्रायल होगा। ये नहीं होगा कि एक दफा जब हमने कॉइन टॉस किया है तो उसका जो रिजल्ट है वो दूसरी दफा कॉइन टॉस करने के ऊपर अप्लाई होगा। नो, ईच ट्रायल विल बी कंडक्टेड ऑन इंडिपेंडेंट ग्राउंड्स, इंडिपेंडेंटली हम उसके रिजल्ट्स को मेजर करेंगे। अब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो भी हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है जो आपको फॉर्मूला के फॉर्म में नजर भी आ रही है उसके पर हम 1 मिनट में बात करते हैं, लेकिन जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है
जो कि प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करती है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो हमेशा डिनोट होगी P से, क्योंकि वो सक्सेस है। अगर हम सक्सेस को 1 में से माइनस कर दें तो हमारे पास फेलियर आ जाएगा, राइट? वन साइड ऑफ द पिक्चर इज सक्सेस, द अदर साइड ऑफ द पिक्चर इज फेलियर. So if we are considering that P is describing success, then Q is describing failure, which is 1 minus P, 1 minus success, right? इस चीज को अगर हम अप्लाई करते हैं अपने फॉर्मूला में, तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है विद x नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन n number of trials, and P is the probability which remains the same, and x is the outcome which might be appearing as 1 to n. We consider that binomial distribution is a sum total of nx, where nx of px and q of n minus x. Let me describe this formula once again. जब भी हम nx की बात करते हैं, सिर्फ इस नोशन को अगर आप डिस्क्राइब करें तो nx एक्सप्लेन होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस x फैक्टोरियल में, where factorial describes n into n minus 1, x minus 2 and so on up till 0. अगर हम एग्जाम्पल से डिस्कस करें तो 3 फैक्टोरियल है हमारे पास, अगर 3 और 1 का केस है अगर हमारे पास, तो 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 1 फैक्टोरियल is equals to 3 into 2 into 1 divided by 2 factorial, which is equals to 2 into 1 divided by 2 into 1. ये 2 into 1 और ये 2 into 1 कैंसिल होकर हमारे पास 3 का रिजल्ट आ जाएगा. तो इस तरह से ही हम यहाँ पर इस वाली जो नोशन है इसको सॉल्व करेंगे. P of x जो सेकेंड पार्ट है फॉर्मूले का, वो डिस्क्राइब करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. कॉइन टॉसिंग में फॉर एग्जांपल वो 1/2 है. x इज द नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी दफा हमने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जितनी दफा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x या सक्सेस अपीयर हुआ है, सक्सेस हमारे पास अपीयर हुआ है या हेड हमारे पास अपीयर हुआ है, से फॉर एग्जांपल थ्राइस, तो हमारे पास जो x है वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को, सक्सेस के नंबर ऑफ टाइम्स को शो करेगा. q 1 माइनस सक्सेस विच इज 1 माइनस p, और ये डिस्क्राइब करेगा कि अगर एक एक्सपेरिमेंट n नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुआ है और उसमें से 3 दफा हेड अपीयर हुआ है, तो n minus 3 should be q, should be the power of q. सॉरी, एक दफा फिर से फॉर्मूला का देख लेते हैं कि nx हमारे पास डिस्क्राइब होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस x फैक्टोरियल में, जिसको हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस किया कि अगर हमारे पास n3 है तो n फैक्टोरियल विल बी 3 into 2 into 1, और अगर हमारे पास n माइनस x 3 माइनस 1 के इक्वल है तो वो 2 फैक्टोरियल का रिजल्ट देगा, विच इज 2 into 1. ये 2 into 1 और 2 into 1 आपस में कैंसिल हो सकते हैं और हमारे पास रिजल्ट 3 आएगा. सिमिलरली जो P है वो हमने इससे पहले डिस्क्राइब किया था कि P जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है. X डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास सक्सेस अपीयर हुई है एक ट्रायल में, एक एक्सपेरिमेंट पे. Q डिस्क्राइब करता है फेलियर which is 1 minus success which is 1 minus p, और ये हम डिस्क्राइब करते हैं इसके जो पावर में हमने जो चीज मेंशन की है वो है n minus x, which shows कि n जो है वो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, नंबर ऑफ टाइम द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, एंड x इज द नंबर ऑफ टाइम्स सक्सेस अपीयर्स, number of times head appears in a coin tossing.
तो अगर हमारे पास एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, ओके, कि अगर हमारे पास एक कॉइन हमने टॉस किया है और एग्जैक्टली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 3 twos इफ एन ऑर्डिनरी डाई इज टॉस्ड 5 times। हमने कॉइन टॉस नहीं किया, सॉरी, हमने डाई रोल की है और हमने एनालाइज करना है कि एग्जैक्टली 3 अपीयर हुआ है, 3 दफा जी हमारे पास 2 अपीयर हुआ है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी क्या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेट मी एक्सप्लेन द एग्जांपल वंस अगेन कि अगर हमारे पास एक डाइस रोल हुई है और ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ है, तो डाइस रोल करने की जो प्रोबेबिलिटी है हर आउटकम की वो है 1/6 सक्सेस की। अगर हमने कंसिडर किया है कि जो सक्सेस है वो अपीयर होगी उस वक्त जब 2 अपीयर होगा, जब 3 दफा 2 अपीयर हुआ है एग्जैक्टली, तो हमारे पास हमने कंसिडर किया है कि ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें जो सक्सेस का जो एलिमेंट है वो 3 है। तो उस केस में जो एप्लीकेशन है हमारे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वो ये होगी कि फाइव इज द नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। 5 दफा हमने डाइस को रोल किया है। 3 times वी शुड एटलीस्ट कम अप विथ 2। डाइस के ऊपर एटलीस्ट 3 दफा 2 आना चाहिए, तो जो सक्सेशन है हमारे पास वो 3 है बेसिकली। 1/6 is the probability of each number appearing on dice. Success is again represented by 3 and 2 is 5 minus 3 actually. 5 is the number of times we have repeated the experiment and 2 is the time which is 3 is the time which is in which we are talking about the success, so 2 is the failure. So if you're talking about failure, so we are considering that twice in experiment we face failure and thrice we receive success. तो इस केस में 5 3 डिस्क्राइब होगा 5 factorial over 3 factorial into 2 factorial which is equals to, जो कि एक्चुअली 5 factorial over 3 factorial into 5 minus 2 factorial है, 5 minus 3 factorial है। Binomial function is explained through कि thrice is the success rate, one over 6 is the probability, which remains the similar one. 1 minus 1 over 6 is equals to q, which is 6 minus 1 over 6, which is 5 over 6. तो ये q की वैल्यू आ गई है। q की जो पावर है वो हमारे पास फेलियर्स है। Q की पावर हमारे पास फेलियर्स है और P की पावर हमारे पास सक्सेस है। इसको अगर हमने फॉर्मूला में अप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 0.32 टाइम्स है, या हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इन एन एक्सपेरिमेंट अगर हमारे पास हमने एक डाइस रोल किया है और हमें मालूम करना है कि एग्जैक्टली 2 जो है वो अपीयर हो रहा है उसमें 3 दफा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा 5C3 और 5 in combination with 3 with success probability is 1/6 to the power of success which is 3, and the product with failure which is 5/6 into the power of failure which is 2, and with the calculation of this through factorial we have come up with the result of 0.032. Now that was the example we have skipped.
इसमें थोड़ी सी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिस्कस हुआ है, इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं, बट इट डिस्क्राइब्स दैट कि अगर 3 कस्टमर्स जो हैं वो एक सुपरमार्केट में एंटर हुए हैं और उन्होंने कपड़े खरीदने हैं, तो कंसिडर दैट देयर इज 30% चांस दैट ईच विल बाय, कि 3 कस्टमर्स में से कितने परसेंट चांसेस हैं कि तीनों के तीनों कपड़े खरीदेंगे, तो ये चांस जो है वो 30% है। तो 30% को हमने सक्सेस कंसिडर कर लिया कि अगर तीनों कपड़े खरीद लेते हैं, या कपड़े खरीदने का जो काम है वो हमने सक्सेस के केस में कंसिडर कर लिया। अगर 30% चांस है कि वो कपड़े खरीदेंगे, तो 1 माइनस 0.30% चांस है, या 70% चांस है कि वो कपड़े नहीं खरीदेंगे। तो इस केस में अगर हमने एक और उसके ऊपर अजम्पशन अप्लाई कर दी है कि प्रोबेबिलिटी मालूम करें कि 2 इनमें से कपड़े खरीदेंगे, तो उस केस में हमारे पास जो इवेंट्स सक्सेसफुल आउटकम शो कर रहे हैं वो 2 आउटकम्स हैं। यहां पर हमने कंसिडर किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, विच इज समेशन, डू नॉट कंसिडर इट, summation 3C2.30 is the probability of success, 2 is the number of times success appears, 1 minus 3 is the probability of failure, 3 minus 2 is the number of times failure occurs। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0.189 का आता है। एक चीज जो यहाँ पर मेंशन करने वाली है वो ये है कि ये जो हेड आपको नजर आ रहा है, दिस एक्चुअली शोज द पावर। जो जिस तरह यहाँ पर ये मेंशन है, समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू राइट इन द फॉर्म ऑफ पावर, तो आई मेंशन दिस डेल्टा नंबर साइन हियर, बट दिस डिस्क्राइब द पावर ऑफ द स्पेसिफिक नंबर। 0.7 की पावर 1 है, 0.3 की पावर 2 है। This is 2, and when we solve it with the calculations, we get the figure 0.8189। अगर हम कंसिडर करें इसी एग्जाम्पल में कि किसी इंडिविजुअल ने, जो 3 के 3 लोग आए हैं, उनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं खरीदे, तो उस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो सिमिलर रहेंगे 3। 0 इज दी सक्सेशन रेट, कि 0 टाइम्स नहीं खरीदे गए कपड़े, तो 0.3 इज दी सक्सेशन probability of success, और 0 times the probability of success appears। 1 minus 3 is the probability of failure, and 3 is the number of time failure appears। तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 0.345 है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हम 0, 1, 2, 3 और यहाँ से प्रोबेबिलिटीज ऑफ x को अगर हम एनालाइज कर लें, तो जब हमने 0 टाइम्स 0 लोगों ने कपड़े खरीदे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आई है 0.345। बिल्कुल इसी तरह से हम 1 को भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर हम 0 की बजाय अगर हम 1 ले लें, तो यहाँ पर जहाँ पर 0 है वहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर एक और हमारे पास फिगर आ जाएगा। 2 का भी हमने केस डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.189 आई है। सिमिलरली हम 3 का भी केस इसी तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर 0 की बजाय हम 3 कंसिडर कर लेंगे, कि तीनों लोग आए हैं और तीनों के तीनों ने कपड़े खरीद लिए, तो सक्सेशन चार्ज जो रेट है वो 3 हो जाएगा, और जो फेलियर का रेट है वो 3 माइनस 3 विच इज 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई वैल्यू आ जाएगी। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास एक काउंटर चेक भी हो जाएगा। अगर हमारे पास इस किस्म की एक एग्जांपल हो या इस किस्म की अगर एक प्रॉब्लम हो जिसमें हमने एनालाइज करना है कि इफ सक्सेशन एंड फेलियर प्रोबेबिलिटीज रिमेन्स द सिमिलर वन, तो हर आउटकम हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी शो करता है। ओके,
Just look at a glance to the mean and variance of binomial distribution, और इसको हम थोड़ा सा expand भी कर लेते हैं कि किस तरह से ये apply होता है. मीन और वेरिएंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के डिनोट होते हैं म्यू और सिग्मा से, सिग्मा स्क्वायर से. मीन इज इक्वल्स टू एन पी. एन इज द नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड and p is the rate of succession. That p is the probability of success, which we have discussed. Sigma square, your variance of the probability, describes n as the number of times an experiment is conducted. p is the probability of success. q is the probability of failure. तो जब हम npq की बात करते हैं, अगर हम n number of experiments को उसकी succession और failure दोनों से उनका product लेते हैं, तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर या वेरिएंस आएगा. और अगर हम उसको सिर्फ उसकी सक्सेशन के साथ एनालाइज करते हैं, नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट की रेपिटेशन को, तो वो हमारे पास मीन शो करता है. लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल कि अगर एक पेशेंट के रिकवर होने की, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ ब्लड डिजीज, रेयर ब्लड डिजीज, और उसके रिकवर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 है, मीनिंग जो सक्सेशन है वो 0.4 है. If 15 people are known to have contracted with this disease, find mean and variance of the survivors. कि अगर 0.4% मतलब 40% चांस है कि ये बंदा जो है ब्लड डिजीज से बच जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि 60% चांस है कि वो बंदा इस डिजीज से नहीं बचेगा. 15 लोगों के अंदर अगर ये एलिमेंट एग्जिस्ट करती है, तो हमें एक मीन और वेरिएंस की वैल्यू चाहिए. n is the total number of people जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है. p is the probability of success. q is the probability of failure, which is 1 minus success, which is 1 minus 0.4, which is 0.6. np शो करेगा हमारे पास 15 into 4, which is 6. 6 is the mean that out of 15 people 6 लोग on an average बच सकते हैं. सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस शो करता है कि उनके अंदर वेरिएशन कितनी होगी, क्या किस वेरिएशन से एग्जिस्ट कर सकता है ये डेटा. तो NPQ डिस्क्राइब करता है वेरिएशन, विच इज डिनोटेड बाय 15 into 0.4 into 0.6, which is 3.6. के 3.6 के वेरिएंस है, और यहाँ पर हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ले सकते हैं. Sigma square under root is equals to sigma, which is equals to under root 3.6. तो यहाँ से हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो डिस्क्राइब कर रही होगी कि on this standard pattern, on this standard platform, there is the probability of survivors. There is the probability that out of these 15 people, this number of people will be surviving. तो एक वेरिएशन भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकती है. Today we have in this lecture we have talked about the variance, and we have worked towards the calculation of variance of a data which is based on frequencies. Secondly, we have talked about uniform discrete distributions, that if there is a uniform distribution in which there exists a single probability of outcomes when repeated multiple times, then what might be the outcome. Then we have discussed binomial distribution with the multiple examples. In binomial distribution we have made a restriction कि जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा है उसके दो रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो सक्सेस या फेलियर. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारे पास दो रिजल्ट्स अपीयर नहीं हो रहे, दो प्रोबेबिलिटीज नहीं आ रही. बाइनोमियल के केस में दो प्रोबेबिलिटीज आएंगी, एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और एक फेलियर की प्रोबेबिलिटी है. तो ये थोड़ा सा फर्क है. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक्सटेंशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की. उसकी हम बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. उसका हम डोमेन डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली किन फॉर्मेट्स के ऊपर अप्लाई होता है, उसकी किस किस्म की कंसिडरेशंस हो सकती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक
टेबुलेटेड स्ट्रक्चर भी होता है, उसका एक पूरा का पूरा चार्ट भी होता है जो कि ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है। उसके अंदर से हम वैल्यूज किस तरह से निकालते हैं और किस तरह से हम उन्हें एनालाइज करते हैं, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज है विद रिस्पेक्ट टू इट्स मीन एंड वेरिएंस, उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।